حوالہ باز سپود تچ ممبرو طرف وتلاون والن مسلن ہند سرکار طرف جواب دن ممبر اسمبلی ورمل جاوید حسن بیگن آز ایوانس مز ملازمن ہند جی پی فنڈ معاملہ وتلاوان سرکارس منگ کرمز جی پی فنڈ واگزار کرنس حوالہ گھِ وت آسان کرنے ین یُتھ زن جی پی فنڈ حاصل کرنے وز ملازمن مشکل ویترن پین تچ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اعتراف کران وونمت جی پی فنڈ حاصل کرنس دوران ملازمن مشکل ویترن پیوان تو سرکار طرف ین امہ حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یپر محمد یوسف تارگین سرحدی علاقن مز بی ایس ایف تو فوج طرف قبضس مز نظام تو ملکیت زمین معاملہ وتلومت یتھ دوران وزیر اعلیٰ تمن یقین دیت سرحدی علاقن ہندن ممبران اسمبلین ست امہ حوالہ میٹنگ کرنے یُتھ زن سرحدن نزدیک روزن والن لوکن تہ راحت واتہ دونوں جگہ پانی کی بہت کرائسس ہو رہی ہے. جو جی پی فنڈ کا مسئلہ ہے، ملازموں کی اپنی جی پی فنڈز کا مسئلہ ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملازموں کو 6-8 مہینے جی پی فنڈ کے لیے اپلائی کر کے ان کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ان دو نکات میں آنریبل چیف منسٹر صاحب کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. اسپیکر صاحب، جہاں تک پہلی بات انہوں نے کی، میں نے بجٹ کے دوران اور گرانٹس کے دوران اس بات کا ذکر کیا کہ وہ جو فیصلہ تھا پلاننگ کے فنکشنز کو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کرنا، اس کو ریویو کر کے اس کو جو ہے تفصیلاً دیکھ کے اگر اس میں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی وہ ہم کر لیں گے. جہاں تک دوسرا سوال انہوں نے جی پی فنڈ کے بارے میں پوچھا، صحیح ہے کہ وقتاً فوقتاً ملازموں کو اپنے جی پی فنڈ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ اس وجہ کیونکہ کبھی کبھار ٹریجری میں جو ہے پوزیشن تھوڑی ٹائٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہماری مکمل کوشش رہتی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے ان کو اپنا جی پی فنڈ کا پیسہ مل جائے. بی ایس ایف یا آرمی وہ بھی ہماری ہے، ان کے کنٹرول میں زمین ہے. اگر جو اونرز ہیں، مالک ہیں، ملکیتی زمین ہے، ان کو معاوضہ نہ ملے، ان کو اس کو کاشت کرنے کی اجازت نہ ملے، یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے. میں صرف سوال نہیں پوچھوں گا، آنریبل چیف منسٹر صاحب آپ ذاتی طور پر یہ دیکھ لیجئے، آنریبل ایم ایل ایز کو بھی اس میں شامل کیجئے اور کسانوں کا یہ مسئلہ جو پینڈنگ ہے فار لاسٹ سو مینی ایئرز کچھ حل ڈھونڈنے کی کوشش کرے. آنریبل اسپیکر صاحب، یہ کسی ایک آنریبل ایم ایل اے کا مدعا نہیں ہے. بارڈر، ایل او سی، جہاں آپ دیکھو تو اس طرح کے مسئلے آ جاتے ہیں، چاہے جموں سائیڈ ہو چاہے کشمیر سائیڈ ہو. فی الحال ایک کا میں یہاں جواب نہیں دے سکتا ہوں. اتنا ضرور کہوں گا کہ کوشش اس سے پہلے حکومت کی رہی کہ جتنا پیسہ آیا ہے اس کو ڈسبرس کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت سارے پیسے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے نمبر سنا ہوگا 155 کروڑ جو ہمیں آئے، اس میں سے 144 ڈسبرس ہوئے ہیں. 11 کروڑ فی الحال ڈپارٹمنٹس کے پاس ہیں جن کو ڈسبرس کرنا باقی ہے. ڈپارٹمنٹ سے کہا جائے گا کہ اس میں تیزی لائے. لیکن جس طرح طارق صاحب نے بھی ذکر کیا، آنریبل ممبر کھڑے ہوئے، یہاں ہیومینیٹیرین بھی ایشو ہے. اس ریلیف کے علاوہ اور بھی لوگوں کے مسئلے ہیں. میری آنریبل ممبر سے گزارش ہوگی کہ سیشن ختم ہو جانے دیجئے. جیسے ہی سیشن اپریل کے پہلے ہفتے میں ختم ہو جاتا ہے، جتنے بھی آنریبل ممبرز بارڈر یا ایل او سی کے قریب رہتے ہیں انہیں بلا کے میں ان کے ساتھ میٹنگ کر لوں گا. افسروں کو رکھ لیں گے اور جو بھی حکومت کی طرف سے ہمیں کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. سری نگر میں آز وزیر اعلیٰ سن رہائش گاہ برہ کن آنگن واڑی ورکروں تو آشا ورکروں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت. یتھ دوران احتجاجس میں شامل ورکر انصاف فراہم کرنے منگ کران. احتجاجس میں شامل آشا ورکروں تو آنگن واڑی ورکروں طرف ون آمت یودوے تم پنن محکمن مز فرضی چکسان انجام دیوان تاہم تہند مسلن راونس حوالہ کھانا قدم تلنے یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد. احتجاجس میں شامل ورکروں طرف منگ کرنا آمت تہند مسلن راونس حوالہ گھن قدم تلنے یُتھ زن تمن بتھن ول مشکل دور کرنے. ہمارے 4 بندے اندر گئے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے دیکھیں گے تب تک نہیں جائیں گے. تھوڑے ہم نے پتھر اٹھائے، تھوڑی ہم نے لڑائی کی، آرام سے بیٹھا. کیا مسئلہ کیا مسئلہ میں کیا ہوگا؟ ہم تو بھی بچے والے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تھوڑی ہم نے لڑائی کی.
उन्होंने बोला कि यहाँ कमिश्नर से एडवाइजर साहब आ रहे हैं, हम उसके साथ आपको बात कर रही 4 लड़कियों के साथ 5 लड़कियों के साथ हम देखेंगे वो क्या कहेगा अंदर से। तो हमने ये जो हमने मंशा रखा है वो हम पूरा करके रहेंगे। लेकिन आज तो हम निकलेंगे यहाँ जहाँ पुलिस भी है, यहाँ ये बोल रहे कि यहाँ इनका मुनासिब नहीं है यहाँ रहना, तो हम जाएंगे एडवाइजर साहब के पास। जो हमारी डिमांड है वो उनके साथ, हमारी डिमांड है, हमें वर्कर बोल रहे हैं लेकिन वर्कर का दर्जा हमें नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर बोल रहे हैं लेकिन वर्कर का दर्जा हमें नहीं बोल रहे। हमें वर्कर का दर्जा चाहे आशा वर्कर को भी, आंगनबाड़ी वर्कर को, और हमें RRM बनना चाहिए। हम बहुत से लोग हैं, आप देखो आगे अगर 2-3 दिन में हमारा मसला हल नहीं हुआ है तब फिर आप देखना कैसा हल्ला होगा। जम्मू कश्मीर मजीद महकमे PHS मज काम करने वाले डेलीवेज मुलाजमन हुंद काम छोड़ हड़ताल जारी तत पुंछस मज मुलाजमों तरफ एहतजाज मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम सरकार खिलाफ सख्त नाराबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल मुलाजमों तरफ वन आमुत योताम सरकार तरफ तीन मसले रावस हवाले कह कदम तुलने तोताम रोज तिहुद एहतजाज बदस्तूर जारी। प्रोटेस्ट रुका हुआ है। हम 3 दिन इससे पहले का आज हमारा 4th डे है जो इसका प्रोटेस्ट का है। तो हमने 72 घंटे की कॉल जो है और एक्सटेंड कर दी थी, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमारे साथ कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने 72 घंटे हमारी मजबूरी बनी कि हमने इसको एक्सटेंड किया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। जब तक डेली विजिट के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम इस प्रोटेस्ट को क्लोज नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज रमजान में पब्लिक का अगर पानी बंद है तो वो सिर्फ इनकी वजह से है। कमेटी बनाने से हमारे घर नहीं भरे जाते, या कमेटी बनाने से हमारे बाल बच्चे की रोटी नहीं बनती है। आप बार बार जो भी गवर्नमेंट आती है वो कमेटी के नाम पर हमें गुमराह किया जाता है। लिहाजा हमें कमेटी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और पॉलिसी चाहिए। अगर पॉलिसी नहीं देगा 6 महीने हम वेट करेंगे, लेकिन हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए। दूसरा यह है कि हमारा पेंडिंग वेजेस जितनी है वो रिलीज की जाए। हम अपना प्रोटेस्ट जो है इसको क्लोज कर लेंगे, नहीं तो आने वाले 72 घंटे और भी ये स्ट्राइक जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। हमने जो है सर स्ट्राइक जो है वो 72 घंटे के लिए पहले कॉल दी थी। जब हमारी गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हुई है तो फिर उसके बाद वो एक्सटेंड हो गई है। अगर हमारी गवर्नमेंट से कोई बात हो जाती है तो हम अपने स्ट्राइक को क्लोज कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो हम इससे एक्सटेंड करते रहेंगे। और आप देखेंगे स्ट्राइक में बहुत ज्यादा शिद्दत आने वाली है। अगर गवर्नमेंट हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगी, ईद के बाद कश्मीर से लेकर लखनपुर तक बहुत बड़ा आंदोलन जो होने जा रहा है। और टोटल अभी तक ये जो हमारे पानी बंद नहीं हुआ है, हमने 2 डाउन किए हैं स्ट्राइक पर। हम आए काम छोड़ हड़ताल पे। जिस दिन पानी बंद करेंगे उस दिन कोई नहीं चला पाएगा। उस दिन अभी पानी बंद की हमने हड़ताल नहीं दी है, हमने अपने सिर्फ स्ट्राइक ये किया है कि हम छोड़ हड़ताल पे हम पूरी डाउन किया है। पानी बंद किया हमने निकल गए, ईद के बाद हम पानी बंद की कॉल करेंगे। उस दिन आप देखेंगे कश्मीर से लेकर लखनपुर तक और पुंछ से लेकर आप देखेंगे आपने लद्दाख तक सारी चक्कर जो है पानी बंद करके रख देंगे और फिर गवर्नमेंट को पता चलेगा कि डेली बेसिस क्या है। जम्मू कश्मीर मजीद महकमे PHS मज काम करने वाले डेलीवेज मुलाजिम हड़ताल पे आसने किन कईयान इलाकन मज चनाबच व्यथ पैदा सपजम। तज राजौरी मज साफ चनाब फराहम करने हवाले जनियों तरफ खामोश एहतजाज करना आमत। एहतजाज में शामिल जनियों तरफ सरकार मांग करना आमत इलाकस में साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल बेहतरीन पे। के आरजी मुलाजिम की हड़ताल का असर आज ज़मीन पर देखने को मिल रहा है, जहां जवाहर नगर के अंदर आप देख सकते हो कि अनोखा एहतजाज इसलिए कह रहा हूं जहां खवातीन सड़क के ऊपर कुर्सियों पर बैठकर खामोश एहतजाज कर रही है। एक अनोखा सा एहतजाज राजौरी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां राजौरी कालाकोट राजौरी रोड पर खवातीन इस वक्त आप देख सकते हैं सड़कों पर चेयर लगाकर खामोश एहतजाज करते नजर आ रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर से महकमा जल शक्ति के आरजी मुलाजिम की हड़ताल का सिलसिला देखने को मिलता है, जिसके चलते शहर के अंदर आप लोगों को साफ पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोई खवातीन से बात करने की कोशिश करेंगे। कब से परेशानी हो रही है? ये पानी हफ्ते से हो रहा है, हमारा पानी हफ्ता हो गया नहीं आ रहा। एक तो आता तीसरे दिन अगर तीसरे 3 दिन लगाएंगे तो 14 दिन का पानी बनता है। ठीक है, 14 दिन समझो पानी नहीं है हमारा। अगर पानी नहीं आएगा तो टैंक खाली होंगे, किसने टैंक भरे होते हैं, वो इतना पानी नहीं आता है। इसलिए आपको इनके जो तीसरे दिन भी नलका आता है ना, हमारा सिर्फ वो 40 मिनट के लिए आता है। ठीक है, जब वो 40 मिनट का जो पानी आएगा तो कितना लोग भरेंगे। और पाइपें भी इनकी छोटी छोटी लगी
लगी हुई हैं। अगर ये पाइप बड़े लगा देना तो पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पानी छोटी लगाते हैं, एक इतनी सी पाइप है उसके साथ 10 कनेक्शन दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है 10 कनेक्शन के बाद वो पानी कितने घरों में, 10 घरों में जाएगा तो कितना कितना पानी बढ़ जाएगा। डिवाइड करना है ना पानी को, एक ही पाइप में थोड़ी ना पानी जाएगा वो। तो इसलिए हमें यही है कि हमारा या तो पानी हमारा डेली कर दें, जहाँ हमारी पानी की को लिमिट बढ़ा दें। बिल्कुल आप देख सकते होंगे, क्योंकि मैं अनोखा एहतजाज इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार शहर के अंदर इस तरह का एक खामोश एहतजाज आपको देखने को मिलेगा, जहाँ खवातीन सड़कों पर चेयर लगाकर बैठी हूँ, क्योंकि इनको पिछले एक हफ्ते से पीने का साफ पानी की किल्लत है। क्या कहेंगे? एक हफ्ते से हमें पानी की किल्लत है और हम यही कहना चाहते हैं कि हमें पानी आना चाहिए। अगर तो रोज पानी आएगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तीसरे दिन पानी आए तो उसका थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए कि हमें कम से कम आपके जरूरी काम तो पूरे हो सके ना, जो पानी के बिना नहीं हो सकते। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर ये अनोखा एहतजाज साफ पानी की किल्लत को लेकर हुआ है, जहां जवाहर नगर के अंदर खवातीन सड़कों पर चेयर लगाकर बैठकर प्रोटेस्ट करती नजर आ रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर राजौरी के अंदर साफ पानी की किल्लत को लेकर लोगों की तरफ से एहतजाज किए जा रहे हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। कुपवारिस में आज बीकन महकमे सहित वाबस्ते कयाव लोगों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद। यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमे जंगलात के खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमद योदवे तम बीकन महकमे सहित कामि दह कर चोर जेनन, ताहम पतमे अकि वरी पे महकमे जंगलात तरफ NOC दिन यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। जरामा मरामा गुजर पदे जमगंड यह खाली मजूर पेश इंसान बेगन वालन सम कर जंगलात NOC करो बंद। मेहरबानी कर इन लूकन अत पे रोजगार अमे सन बच्चे थोड़ा बहुत गुजार करा। मेहरबानी कर जंगलात वाल हाई कमानस अपील करा अ दिव NOC बिचार गरीब लूक लागन कम गसन रोजगार बन। ईद वाले कलस योत नौकरी मंगा के पोर्टर वन दिव पन हक दिव NOC जंगलात की तरफ। सरकार के दावे हैं कि बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, वो बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं कि बेरोजगारों को खत्म कर रहे हैं। हम लोग जो हमारे पास, हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं, जंगलात के रहने वाले हैं हम लोगों के पास एक ही सहारा है, बीकन के साथ हम लोग मजदूरी करते हैं। कम से कम 5000 चूल्हे हमारे जलते हैं बीकन से। अब हम पिछले साल से प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से हमने काम कर रहे थे, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें NOC प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आज हमें बीकन निकाल रही है। बीकन के पास जब काम बचा ही नहीं, जब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने NOC बंद कर रखी है, तो हम लोग कहाँ जाए? ईद है, हमारे पास घर में चूल्हे जलाने के लिए भी 10 रुपए भी नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोग जाए कहाँ? हम आप लोग बेरोजगारी खत्म कर रहे हो कि बेरोजगार? हमारी हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट है आला हुकाम से, LG इंतजामिया से और चुनी हुई सरकार से और चीफ सेक्रेटरी साहब से कि हमारी रोजी ना मारी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारी बात उन तक आप पहुंचाना चाहते हो, हमारी इस वीडियो क्लिप को बिल्कुल भी स्किप आप लोग ना करें, उन तक ये हमारी बात पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग खुदकशी करने के ऊपर तैयार हैं। हम अपने बच्चों को कहां से हम आसरा दें? 10-20 गाँव नहीं, ये पूरा इलाका जो है, जैसे केरन है, फरकिया, मचिल वगैरह, जुरामा और जुमागंड, गुजरपति, ये सारे इसी पे मुश्तमिल है। हमारे पास और कोई सहारा है ही नहीं। सहारा है अल्लाह के बाद हम बीकन से हमारा चल रहा है। अब बीकन के पास जब हम जाते हैं, हमने उनके आला हुकाम से जब बात की, तो उन्होंने हमें यही कहा जब हमें क्लियरेंस मिलेगी, फॉरेस्ट की क्लियरेंस मिलेगी, हम लोग काम शुरू करेंगे, आपको काम पर रखेंगे। नहीं तो हम लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके आगे हम जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी आज कस्बुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा मुख्तलिफ महकमन हिंद दोयम अफसर ते मौजूद है। दौरस दौरान ये तिमो मुख्तलिफ महकमन हिंद कामकारुक जायजे हो, तत तिमो म्यूनसिपल कमेटी हिंदन जिम्मेदारन वोनमुत ज तिम गछन महकमुक कामकार मजीद बेहतर बनावनस हवाले संजीदा सपदन, युत जन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेन। यह जन तिमो वोन से कस्बस मज काम करने वाले दुकानदारन तो लूकन दरपेश मुश्किलन हवाले हिदायत दिन आमद जे अमे हवाले गए संजीदा सपदन, युत जन इन वालन दोहन मज लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन।
देखिए, आपको मालूम होगा कि ये जो रमज़ान का पाक महीना है, अभी ईद आने वाली है अगले हफ्ते, और उसके साथ साथ नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे, तो बहुत एक फेस्टिव सीज़न आगे आने वाला है। उसके बाद बैसाखी होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए कि टाउन के जो इश्यूज़ थे, जो लॉन्ग टर्म इश्यूज़, यहाँ पे हमने बार बार हर इंटरेक्शन में पाया कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो म्यूनसिपल काउंसिल रजौरी की फंक्शनिंग को लेके हैं। उसको आज मुआयना किया गया, मौके पे जांच की गई, और बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, चाहे वो सैनिटेशन का मसला हो, चाहे वो अपनी जो स्ट्रीट्स का रिपेयर की स्थिति हो। सबके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि इसको विद इन टाइम फ्रेम इसको ठीक किया जाए। इसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स हमारे काम करते हैं, जो टाउन में जिनके ऑफिसेज़ हैं, चाहे वो पीएचई का डिपार्टमेंट है, पीडीडी का डिपार्टमेंट है, उनके स्टाफ की आज इंस्पेक्शन की गई, और जो पब्लिक के कंसर्निंग मुद्दे थे, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स को लेके बार बार पिछले 1-2 महीने से आ रहा था, उसका भी इंस्पेक्शंस की गई, रिकॉर्ड की, और उसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। देखिए, सैनिटेशन जहाँ तक मसला है, सैनिटेशन सिर्फ अकेले डिपार्टमेंट करे या अकेले लोग करें पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें डेली घर से वेस्ट जनरेट होता है, डेली दुकानों से वेस्ट जनरेट होता है। उसका एक तरीका होता है कि जो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी होगी, उसके अंदर वो सामान जो वेस्ट है उसको अलग अलग ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट करके 2 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डालना है, और उसके बाद उसको रास्ते में या कहीं खाली जगह पे या तालाब में नहीं डिस्पोज करना है, डंप नहीं करना है। और यही चीज़, इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ के लोगों का, यहाँ की आवाम का। रजौरी के जितने भी लोग हैं, हम अपने शहर को साफ़ रखें, सुथरा रखें, और कोशिश करें कि जो लोग पूरे रजौरी से अलग अलग तहसीलों से, ब्लॉक से, गाँव से, पुंछ से लोग इस मार्केट में विज़िट करते हैं, वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएँ, और जब वो यहाँ पे आएँ उन्हें एक साफ़ शहर मिले। इसके लिए जो भी कोशिश की ज़रूरत है वो सारी कोशिशें की जाएंगी। रियार इश्कोम बडगेमिस मज आज डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर बडगेम तरफ आलमी टीबी दह मनावना आमुत, यथ मज चीफ मेडिकल अफसर बडगोम तो महकम के दोयमो जिम्मेदारों अलाव मुकमी लूको शिरकत कर। प्रोग्राम दौरान ये लूकन टीबी बेमार हवाले जान दिन आई, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जम बेमार हवाले जानकारी प्रोग्रामन हुंद संज करन जरूरी, युद्ध जन वक्तस पे मरीज सुंद इलाज करित अम बेमार हुंद न्याल गाल यी। मैं एक बात यहाँ पे बताऊंगी, हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम के जरिए ये बताना चाहेंगे कि लोगों को अगर कभी भी किसी इंडिविजुअल को कोई भी सिम्टम टीबी का हो तो वो जल्द से जल्द अपनी नज़दीकी कोई भी हेल्थ फैसिलिटी है वो वहाँ पे जाए। जैसे अगर किसी को 2 हफ्तों से ज़्यादा या 2 हफ्तों तक खांसी रहे, या वज़न कम होता हो, या भूख न लगती हो, या थूक के साथ खून आ रहा हो, तो वो अपनी किसी भी नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी जो भी है, पीएचसी है, सीएचसी है, या हेल्थ सेंटर है, कोई भी, वहाँ पे जाके अपनी जाँच करवाए, ताकि ये अर्ली डिटेक्ट हो और अर्ली इसका ट्रीटमेंट हो। और जब अर्ली ये डिटेक्शन होती है या अर्ली ट्रीटमेंट इसका हो जाता है तो ये फैलने से रुक जाती है। तो अर्ली जहाँ पे भी हमें कोई पेशेंट मिले, हम अर्ली इसका डिटेक्शन हो जाएगा। तो यही हमारा मकसद है कि नहीं हमें है पेशेंट्स बहुत, तो हमें 133 पेशेंट इस टाइम है पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑन ट्रीटमेंट, मगर हम किसी की आइडेंटिटी नहीं करते हैं यहाँ पे ये रिवील, ताकि क्योंकि ये हमें मतलब इसमें अलाउ नहीं, हम किसी का ये अपना होता है, हमें इसमें मेडिकल प्रोफेशन में हमें 133 पेशेंट्स है जो इस टाइम ऑन ट्रीटमेंट है। वो इसका घर भी जाते हैं, घर विजिट्स भी, होम विजिट्स भी होते हैं, और आशा के जरिए या हमारा हेल्थ विजिटर उनको जाता है, हेल्थ एजुकेटर जाता है, और वहाँ वो ट्रीटमेंट सुपरवाइजर भी जाता है, और वहाँ हॉस्पिटल भी आते हैं, वहाँ से भी इनका टेस्ट। हमें उनका जो अगर किसी घर में पहले हम उनको बुलाते हैं, उनको स्क्रीनिंग करते हैं। अगर किसी घर में कोई पेशेंट निकले तो पहले उस घर के लोगों को ही हम स्क्रीन करते हैं कि कहीं इनमें ना लगा हो। अगर ना लगा हो तो हम उनको ट्रीटमेंट पे बाज़ाब्ता डालते हैं। उनको 12 वीक्स का ट्रीटमेंट चलता है ताकि ये उसके शिकार ना हो जाए। इस वक्त हम यहाँ पर रेयार में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, इसके हवाले से हमने यहाँ एक स्क्रीनिंग कैंप भी यहाँ हो रहा है, अवेयरनेस और स्क्रीनिंग कैंप, और एक रैली भी जैसे आपने देखा होगा अभी स्टूडेंट्स ने एक रैली। हमारा मकसद आज के इवेंट का ये है कि वी वांट टू क्रिएट दिस अवेयरनेस एज वेल एज स्क्रीनिंग। इसके मुतालिक हम बताना चाहते हैं लोगों को कि
हालांकि हकीकत ये है कि सारी इंडिया में, सारी कंट्री में आवर डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड टीबी फ्री। तो मगर इस पे हमें सोना नहीं है। हमारा मकसद यही है कि जो हमने टीबी फ्री इसको डिक्लेयर किया है उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम एक्टिविटी अपनी जारी रखेंगे। स्क्रीनिंग के हवाले से जैसा कि आप हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे किस पेशेंट को आपको जरूरी रेफर कर, या अगर कहीं पर डिटेक्ट हो गया ऐसा कोई केस, जैसे कि आपने देखा हो हमारा एक और प्रोग्राम चल रहा है टीबी मुक्त पंचायत अभियान, उसमें भी हम देखते हैं कि हर एक आउट ऑफ 1000 पीपल 1000 पॉपुलेशन में से कम हमको 30 केसेस को रैंडम टेस्ट करना है। ये नहीं है कि पहले सिम्टम होगा फिर तभी हम उसी पेशेंट को टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग का मकसद ये है कि हमको ढूंढना है कहीं कोई ऐसा केस है तो नहीं जो हमारी इसमें अभी जानकारी में नहीं है। और जो ही हमें कोई केस डिटेक्ट का, हमारा टीम जो ट्यूबरकुलोसिस का है बहुत प्रोएक्टिव है यहाँ, मतलब दे एट द सेम, और गवर्नमेंट की स्कीम्स इसमें बहुत सारी आ गई हैं। निक्षय पोषण अभियान है, निक्षय मित्रा है, यहाँ पर मैं वो डिटेल नहीं बता सकता हूँ। मकसद ये कहने का है लोगों को अगर जो कुछ जानकारी भी देता है किसी ऐसे मरीज के बारे में उसको भी हम इंसेंटिव देते हैं। और अगर हमें लगेगा कि कोई किसका फाइनेंशियली इसमें खुद को इलाज नहीं करवा सकता, उसके लिए गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता वो निक्षय पोषण अभियान और 1000 रुपीज उसको पैकेज भी देते हैं। तो उसके लिए उसी हवाले से मगर हमने मुनासिब समझा कि हम बाज़ाब्ता फील्ड में बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी मज आज कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज लेक्चरर तो उस्तादो अलाव तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे तलब इल्मन हंदिस मुस्तकबिलस हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत इन प्रोग्राम हंद साइंस कर तलब इल्मन ब्रोह पकनस मज आसानी सपदन। जो उर्दू नहीं आती तो ले लो आप। जो सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और 24 से 29 का ये जो हफ्ता है इसमें मेगा कैरियर काउंसलिंग जो है वो इवेंट्स मुनक्कद करने के लिए हिदायत जारी की गई थी। इसी के तहत आज हमने यहाँ पर भी एक कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें 10th के बच्चों को हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से और हमारी जो 21वीं सदी के स्किल्स हैं और ख़ास तौर पर हमारे ये जो बच्चे हैं 10th में इसके बाद अपना जो वो करियर जो है अपनी सलाहियत के मुताबिक, अपने रुझान और इंटरेस्ट के मुताबिक और पोटेंशियल के मुताबिक कैसे चूज़ कर सकते हैं, उनको हमने जो है वो गाइड किया, उनकी काउंसलिंग की। जैसे अगर आर्ट्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स की फील्ड में कितना बड़ा स्कोप है और बच्चे जो है किस तरह से अपना करियर जो है वो चुन के कल 21वीं सदी में अपनी जगह जो है वो पा सकते हैं। देखिए ये मैं समझता हूँ कि तलबा को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, इसलिए कि ये दूर दराज हमारा इलाका है, बहुत पोटेंशियल है, यहाँ बड़े ज़हीन बच्चे भी हैं, लेकिन अगर उनकी वक्त के ऊपर सही काउंसलिंग कर दी जाए उनके पोटेंशियल के हिसाब से और उनकी मदद की जाए और जो उनके अंदर पोटेंशियल है, इनर जो है क्वालिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं उस एतबार से, तो यकीनन ये बच्चे हमारा जो रोशन मुस्तकबिल हैं और वो अपना बेहतर मुस्तकबिल जो है वो चुन सकते हैं अगर उनको हम बेहतर तरीके से गाइड कर पाएँ। जिस सिलसिले के तहत हमने इस पूरे हफ्ते में मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो मुनक्कद करने हैं इस क्लस्टर में। तो नाज़रीन इज्जत वोत कशर खबरनामा दी इजाज़त खुदा सवाल।